Good morning, student. Students, in the previous classes, we have studied about desert land, desert land, and snow land, forest land. Student, today we will going to talk about our chapter 7, prairies, the grassland. Prairies called as grassland. What is grassland? We will discuss about today what is grassland, its climate and vegetation. So, next we come to what is grassland. Grassland क्या है? The temperate zone lies between 23.5 degree north and 66.5 degree north in the northern hemisphere. You can see now, this is our northern hemisphere and it is southern hemisphere. Here is the 23.5 degree north and here is the 66.5 degree north. And this is the southern hemisphere. Here is the 23.5 degree south and 66.5 degree south. Clear? This is the north zone and this is the south zone. It's a equator. Clear? It's equator. तो आप लोग को क्लियर हुआ ना, ये नॉर्थ जोन है एंड ये साउथ जोन है. ग्रासलैंड लाइज बिटवीन 23 डिग्री नॉर्थ to 66 degree 66.5 degree north between, है ना. यहाँ पे ग्रासलैंड लोकेटेड रहते हैं. यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रासलैंड देखने को आपको मिलेगा. In the northern hemisphere and between 23 and half degree south and 66.5 degree south in southern hemisphere. And this is the area which is lies the grasslands. 23.5 degree south and 66.5 degree south. Between this area, the grassland lies, and between this and north. In northern hemisphere, between this area and the southern hemisphere, between this area, it can be rice. Most of the grassland are located in the temperate zone. Most of the grassland are located in the temperate zone. And temperate zone lies between this area and this area. Almost grassland आपको कहाँ पे पाए जाते हैं? Southern hemisphere के इस area में temperate zone. This is the temperate zone of the southern hemisphere and this is the temperate zone of the northern hemisphere. Okay. The grasslands are known by different names in different countries. Different countries में different names से this same grassland को अलग different नामों से जाना जाता है. Like major grasslands of world. World की different countries में grasslands को different names से जाना जाता है. So first North America. Today we will study about this, है ना? Today we will study about this prairies grassland. In North America it is called as prairies. In South America it is called as pampas. In Russia it is called as steppes. And Australia it is called as downs. And South Africa it is called as velds. So, you know that in the different country, it is called as different names. The prairies are a vast stretch of land in the center of North America. North America के सेंटर में बहुत ही बड़ा prairies है, बहुत ही vast area में, मतलब बहुत बड़े एरिया में grasslands हैं. This land is either flat or hilly and covered with tall grass for miles and miles. वो हिली एरिया में भी है एंड ऑलमोस्ट प्लेन एरिया में भी वो ग्रासेस होती है. और कैसी होती है? बहुत ही ऊंची ग्रासेस होती है. माइल्स एंड माइल्स, मतलब बहुत दूर तक फैली ऊंची ग्रासेस होती हैं वो ग्रासलैंड्स में नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल एरिया में.
हार्डली एनी ट्रीज आर फाउंड। वहाँ पे इतनी ग्रासेस होती है, बहुत ही कम ट्रीज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बिफोर द कमिंग ऑफ द यूरोपियन सेटलर्स, द लैंड ऑफ द प्रायरीज वाज यूज्ड एज ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर हर्ड्स ऑफ बीसेस। यूरोपियन वहाँ पे सेटलर बने, इसके पहले क्या होता था, वो ग्रासलैंड्स कैसे यूज होती थी वो ग्रासलैंड? एज ए ग्रेजिंग ऑफ हर्डर्स, पशुओं के चारे के लिए, बीसन के चारे के लिए, पशु वहाँ का जो एनिमल था बीसन, उसके चारे के लिए, उसके हर्ड्स के लिए वो ग्रासेस का यूज होता था। द बीसन्स वेयर मर्सिलेसली हंटेड एंड टुडे दे आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। जब यूरोपियन वहाँ पे सेटल होने लगे, वहाँ पे सेटल आउट होने लगे, तब वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बेसन्स जो वहाँ का एनिमल था उसको बहुत ही निर्दयी रूप से उसको मार दिया गया, उसको मारने लगे वहाँ के लोग। एंड टुडे का ये जो हालात है कि आज बिल्कुल एक्सटिंक्ट, मतलब बिल्कुल विलुप्त हो गए, ये बिशन नाम का प्राणी ही बिल्कुल विलुप्त हो गया है। सो वी विल कम टू द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया। We will come to the climate of this area, the grasslands, prairies, है ना। नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेट कैसा है? As prairies are located in the temperate zone, as we know, है ना, जैसे कि as we taught, the prairies are located in temperate zone. This is the temperate zone of the both hemisphere, है ना, दोनों हेमिस्फीयर का ये temperate zone है। The winters are cold and summers are hot. As usual, normal seasons are there. Winters are cold and summers are hot. Moderate rainfalls occur mostly in summer. There is an occasional rainfall and snowfall in winter. Rainfall भी moderate है, moderate means normal ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, summers में होते हैं। And winter में कभी कभी बहुत ही कम rainfalls होते हैं, कभी कभी snowfall भी होते हैं। Now we will come to the vegetation in the grassland. Vegetation consists mainly of grass and a few trees. Grasslands में vegetation क्या है? Almost mainly grass का ही, grass वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और कहीं कहीं थोड़ी बहुत trees होती हैं। However, today vast areas of land have been cleared for agriculture. But आजकल क्या हुआ है कि उस grass को कट करके वहाँ पे बहुत बड़े एरिया में अब एग्रीकल्चर भी होने लगे, खेती भी करने लगे हैं वहाँ के लोग। सॉइल इज क्वाइट फर्टाइल। वहाँ की मिट्टी कैसी होती है? ग्रासलैंड्स है तो बहुत ही वहाँ की सॉइल्स कैसी होती है? फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। वाटर इज अवेलेबल प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मसूरी रिवर्स। और मसूरी एंड मिसिसिपी रिवर से वहाँ के लिए वाटर भी बहुत ही वास्ट लेवल पे अवेलेबल है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, मेज, राई, ओट्स एंड बैरली। वहाँ का मेन क्रॉप्स कौन सा है? wheat, maize, rye, oats and barley. Prairies are called the wheat basket of the world. Prairies are also called the wheat basket. उसको wheat basket भी बोला जाता है, दुनिया का wheat basket prairies को बोला जाता है। As farmers produce enough for the country and also for export. वहाँ के फार्मर्स अपने देश के लिए तो प्रोडक्शन कर ही लेते हैं, बट उसको एक्सपोर्ट करना मीन्स निर्यात करना, उसको बेचने के अपने कंट्री के अलावा वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उतना ज़्यादा वो ग्रो कर लेते हैं कि उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसको अदर कंट्रीज में उसको बेचते भी हैं, उसको सेल करते हैं। The farms are very huge. वहाँ के खेत बहुत बड़े बड़े हैं, कवरिंग thousands of acres. हजारों एकड़ की जमीनें वहाँ पे हजारों एकर्स के वहाँ पे खेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। The farmers live on the farms and call their homes homesteads. अपने फार्म में ही वो लोग एक घर बना लेते हैं और उस घर को क्या कहा जाता है? होमस्टेड्स कहा जाता है। They are prosperous and have all modern comforts. वो लोग बहुत ही आशावादी होते हैं और बहुत ही मॉडर्निटी से भी जीते हैं। All the work such as plowing, sowing, harvesting and threshing are done by the machines. Almost एग्रीकल्चर का सारा काम प्लाविंग से लेके थ्रेसिंग तक का, कटिंग, हार्वेस्टिंग, शॉविंग मतलब उसको रोपना और उसको हल चलाना से ट्रैक्टर्स तो मशीन से ही होता है, एंड उसको कटिंग करना एंड उसको फिर तैयार करना, सारी चीज़ें किससे होती हैं? मशीन से ही होती है। फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन बिग स्टोरेज बिन कॉल्ड सिलोस। और सारे अनाज को बहुत बड़े स्टोरेज में
कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, जिसको सिलोस कहा जाता है. The western part of the prairies is hilly and the soil is not so fertile. But the western part of the north part is almost fertile, most of the fertile areas, and the western part is not so fertile. मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं है. Animals are reared on large open grassland called ranches. वहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत बड़े ग्रासलैंड्स पे, वहाँ की, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पे पशुओं को वहाँ पे पाला जाता है. क्यों? दे आर reared for their meat and products like milk, butter, etc. उनके मीट के लिए एंड मिल्क और बटर जैसे प्रोडक्ट के लिए भी उनका वहाँ पे पालन होता है, और फिर उसके थ्रू वो लोग कॉमर्शियली उसको इन्वेस्ट करते हैं. समझिए तो उसको कॉमर्शियली इन्वेस्ट करते हैं, उससे वो अपना जीवन यापन चलाते हैं. शिकागो इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स. स्लॉटरिंग मतलब पशुओं को काटना, उसका वध करना, है ना. जहाँ जैसे कि मीट जहाँ पे सेल आउट होती है, तो वो मीट बना के फिर उसको सेल करते हैं. तो वहाँ पे स्लॉटरिंग सेंटर है शिकागो में सबसे बड़ा. बिग डेयरी फार्म्स हैव बीन डेवलप्ड, और वहाँ पे बहुत बड़े क्योंकि पशुओं को पालन किया जाता है, और मिल्क व बटर वगैरह प्रोडक्ट वहाँ पे बनता है, और उसको फिर बड़े डेयरी फार्म्स वहाँ पे बने हुए हैं, और उसके थ्रू वो सेल आउट करते हैं. दे हैव मॉडर्न मशीन्स, इवन मिल्किंग इज डन बाय मशीन्स. उनके पास बहुत ही बड़े आधुनिक मशीन्स भी